السلام علیکم ناظرین۔ لکھو خوش خوش اس طرف چل دیا جدھر درختوں کے نیچے دری بچھ گئی تھی، شراب کی بوتلیں رکھ دی گئی تھیں اور کانسی کے چھوٹے گلاس بھی آ گئے تھے۔ تقریباً سارے آدمی وہاں جمع ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کر رہے تھے اور گوشت پکتا دیکھ رہے تھے۔ میں خاموش خاموش جیسے بادل نخواستہ چلتا سرنگ کی طرف ہو گیا۔ سرنگ کے باہر ایک ڈاکو برابر پہرے پر موجود تھا۔ مجھے اس کی فکر نہیں تھی، اسے میں بڑی آسانی سے رات کے وقت قابو کر سکتا تھا۔ اگر مجھے کمانڈو آپریشن کرنا ہوتا تو یہ سارے لوگ میرے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں تھے، لیکن ان لوگوں نے میرے ساتھ بڑا احسار کیا تھا، خواہ اپنے لالچ کے لیے صحیح، لیکن میں ان کے حسن سلوک اور مہمان نوازی کا بدلہ ان لوگوں کی گردنیں توڑ کر نہیں دینا چاہتا تھا۔ سرنگ کے باہر پہرا دینے والے نے مجھے دیکھا اور خاموش رہا۔ میں سرنگ میں چلا گیا۔ شکنتلا صاف پر دیوار کی طرف منہ کیے پڑی تھی۔ میرے قدموں کی آہٹ سن کر جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ چراغ جل رہا تھا۔ مجھے دیکھا تو چہرے کی پریشانی قدرے دور ہو گئی۔ میں اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا، ہمیں آج رات کسی وقت یہاں سے نکلنا ہوگا۔ وہ چہرے پڑے ہوئی بالوں کی لٹ ہاتھ سے پرے ہٹاتی ہوئی بولی، کیا سچ ہے؟ میں نے کہا، ہاں، یہ لوگ رات کو شراب کی محفل گرم کر رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ آدھی رات تک شراب کے نشے میں دھت ہو جائیں گے، بس اسی لمحے ہم یہاں سے فرار ہو جائیں گے۔ جب میں نے اسے بتایا کہ ہم ان کے 2 گھوڑے بھی لے لیں گے تو وہ کہنے لگی، گھوڑے شور تو نہیں مچائیں گے؟ میں نے کہا، میں انہیں قابو کر لوں گا۔ تم یہ بتاؤ کہ تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ یہاں سے میں کس طرف کو جانا ہوگا؟ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ پھر میں نے اپنے ہاتھوں کے اشارے سے اسے سمجھایا کہ اس طرف نارتھ یعنی شمال ہے، اور اس طرف ساؤتھ ہے، اور اس طرف ایسٹ اور اس طرف ویسٹ ہے۔ وہ ویسٹ کی طرف ہاتھ کر کے بولی، ہم اس طرف جائیں گے۔ مجھے اتنا معلوم ہے کہ جس رات یہ لوگ مجھے اغوا کرنے کے بعد نکلے تھے تو آسمان پر ستاروں کو میں نے دیکھا تھا۔ میری سمجھ کے مطابق یہ لوگ مجھے ایسٹ کی طرف لے چلے تھے۔ اوکے، میں نے اٹھتے ہوئے کہا، میں اب آدھی رات کے بعد کسی بھی وقت آ سکتا ہوں، تم تیار رہنا۔ اوکے، شکنتلا نے کہا، اور آنکھوں ہی آنکھوں میں جیسے میرا شکریہ ادا کرنے لگی۔ میں سرنگ سے نکل کر واپس آ گیا۔ ابھی شام کا اندھیرا نہیں چھایا تھا۔ میں رات ہونے سے پہلے اس پگ ڈنڈی کا جائزہ لینا چاہتا تھا جہاں سے گھوڑوں کو لے کر مجھے سرنگ کی دوسری طرف جانا تھا۔ جب میں صحن کی پتھریلی سیڑھی اتر کر نیچے جدھر گھوڑے بندھے ہوئے تھے ادھر جانے لگا تو لکھو نے مجھے دیکھ لیا اور بولا، بابو کہاں جا رہے ہو؟ ادھر تو آؤ، میں تو تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ میں بھول ہی گیا تھا کہ میں لکھو کو یہ کہہ کر شکنتلا کے پاس گیا تھا کہ میں اسے خط لکھنے کے بارے میں دباؤ ڈالنے جا رہا ہوں۔ میں نے ہنس کر کہا، دادا، میں تمہاری طرف ہی آ رہا تھا، تمہیں مصروف دیکھا تو سوچا پہلے ذرا ندی پر جا کر منہ ہاتھ دھو لوں۔ اس وقت لکھو دری پر اپنے ڈاکو ساتھیوں کے پاس بیٹھا باتیں کر رہا تھا اور سگریٹ پھونک رہا تھا۔ میں جلدی سے اس کے پاس چلا گیا۔ کیا کہتی ہے راجکماری؟ میں نے کہا، دادا، تمہیں خوشخبری سنانا چاہتا ہوں، لڑکی خط لکھنے پر راضی ہو گئی ہے۔ کل 1-2 کاغذ اور پنسل کہیں سے منگوا لینا۔ لکھو نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دباتے ہوئے کہا، بابو آخر پڑھے لکھے ہو، تمہاری پڑھائی کا جادو چل ہی گیا۔ ارے رامو رے رامو، کل نجریہ کو گاؤں بھیج کر کاپی پنسل منگوا لینا۔ رامو چولہے کے پاس بیٹھا ہنڈیا میں ڈوئی ہلاتے ہوئے بولا، منگوا لوں گا دادا، تم دارو کی بوتل کھول دو، گوشت تیار ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، ذرا منہ ہاتھ دھونا چاہتا ہوں۔ اس نے ایک آدمی کو آواز دے کر کہا، ارے بھگوارے، جا رے بابو کا نیچے جا کر ندی پر منہ دھلا دے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ لوگ برابر میری نگرانی کرتے رہتے تھے۔ ان کے نزدیک میں بھی سونے کا انڈا دینے والی مرغی تھی، کیونکہ ان کے خیال میں میرے پاس سونے کی ڈلیوں والی ہنڈیا کا راز تھا۔ ایک ڈاکو میرے ساتھ ہو گیا، اس نے کاندھے پر بندوق ڈال رکھی تھی، وہ میرے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ نیچے ایک کھلی جگہ پر درختوں کے نیچے 6-7 گھوڑے بندے گھاس وغیرہ کھا رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہاں سے ایک چھوٹی سی پگ ڈنڈی ٹیلے کے نیچے بل کھاتی ہوئی سرنگ کے دوسرے راستے کی جانب نکل گئی تھی۔ مجھے رات کو گھوڑے لے کر اس پگ ڈنڈی سے گزرنا تھا۔ میں نے نیچے ندی پر جا کر منہ ہاتھ دھویا، ٹھنڈا پانی پیا اور واپس ہو لیا۔ واپسی پر بھی میں نے جائے واردات کا سرسری جائزہ لیا۔ میرے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ جب رات ہو گئی تو ان لوگوں کی دھما چوکڑی شروع ہو گئی۔ شراب کی بوتلیں کھل گئیں، شور شرابہ مچنے لگا۔
मैं इस ख्याल से झोंपड़ी के अंदर जाकर चरपई पर लेट गया कि बाहर होऊंगा तो लक्खू ज़रूर मुझे शराब पीने पर मजबूर करेगा, और मैं शराब को हाथ भी नहीं लगाना चाहता था। बाहर शराबी डाकुओं की मुंडली जम गई थी। थोड़ी देर बाद उनके हू हू की आवाज़ें बुलंद से बुलंदतर होना शुरू हो गईं। मेरे पास घड़ी नहीं थी, वक्त का मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था, मुझे वक्त मालूम करने की कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं थी। मैं तो इन लोगों के शराब में धुत होने का इंतज़ार कर रहा था। बाहर से ढोलक बजने और गाने की आवाज़ आने लगी। ये धमा चौकड़ी काफ़ी देर तक जारी रही। इतने में एक आदमी मेरे लिए रोटी और हिरन का भुना हुआ गोश्त लेकर आ गया। मैंने उससे पूछा, सुरिंग में जो लड़की कैद है उसको भी खाना दिया है या नहीं? वो बोला, उसको तो मैं 2 घंटे पहले ही दे आया था। सरदार ने कहा है, अगर शराब पीनी हो तो आ जाओ। मैंने कहा, सरदार से कहो शुक्रिया, मुझे नींद आ रही है, और सुबह उठकर मुझे लड़की से खत भी लिखवाना है। खत लिखवाने की बात मैंने इसलिए की थी कि ये सुनकर लक्खू मुझे शराब पीने पर मजबूर नहीं करेगा, ताकि मैं सुबह होशमंदी की हालत में लड़की से ठीक ठीक खत लिखवा सकूं। वो आदमी चला गया। मैंने चारपाई पर बैठकर खाना खाया। मिर्चें बहुत थीं। पानी पिया और सिगरेट सुलगा कर लेट गया। ये सिगरेट मुझे लक्खू ने दिए थे। भारतीय सिगरेट थे, बड़े सख्त और घटिया थे, मगर मुझे सब कुछ खा पी कर हजम कर लेने की तरबियत दी गई थी। मैं आला से आला और घटिया से घटिया सिगरेट पी सकता था, और मेरा गला खराब नहीं होता था। आदमी को सख्त जाने की आदत डालनी चाहिए। नाजुक मिजाज बने रहने से आदमी की मुदाफ़ियत की क़ुव्वतें कमज़ोर हो जाती हैं। ये ज़रूरी है कि आदमी को हिलाल हराम का फ़र्क ज़रूर कर लेना चाहिए। मैं चारपाई पर लेटा सिगरेट पी रहा था, मगर मेरे कान बहर की आवाज़ों पर लगे थे। शराबियों ने खूब शोर मचा रखा था। शायद वो किसी आदमी से नंगा डांस करवा रहे थे। जैसे जैसे रात गुजरती गई, उनकी आवाज़ें ख़त्म होना शुरू हो गईं। अब बाहर से किसी किसी वक्त किसी की आवाज़ आ जाती थी कि फ़िला कहाँ है, फ़िला ने बोतल कहाँ छुपाई है। मुझे और दारू दो रामो। कुछ वक्त और गुजर गया, फिर बाहर गहरी खामोशी छा गई। मैं आहिस्ता से उठकर झोंपड़ी के दरवाजे पर आ गया। मैंने देखा दरख्त की शाख के साथ लटकी हुई लालटेन जल रही थी। नीचे दरी पर शराब में धुत सारे आदमी बेहोश पड़े थे। कोई इधर पड़ा था, कोई उधर पड़ा था। मैंने गौर से माहौल का जायजा लिया। वहाँ ना कोई आवाज़ थी, और ना कोई पहरेदार किसी जगह बैठा या चलता हुआ नजर आ रहा था। मैं दबे पांव बड़ी एहतियात के साथ बाहर निकलने की बजाय जो बेनियाजी से झोंपड़ी से निकलकर पत्थर की सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, जैसे मामूल के मुताबिक नीचे नदी पर पानी वगैरह पीने जा रहा हूँ। मगर मेरी आंखें चौकस थीं, और मैं चारों तरफ नज़रें घुमाकर एक एक चीज़ का जायजा लेता जा रहा था। ये लोग मुझसे दूर दरी पर पड़े थे। इनमें लक्खू भी होगा, इस ख्याल से कि अगर वो थोड़ी होश में होगा तो मुझे नीचे जाता देखकर ज़रूर आवाज़ देगा। मैं सीढ़ियों के पास जाकर रुक गया, और फिर यूं ही टहलने लगा। टहलता टहलता मैं लालटेन के पास आ गया। मुझे एक तरफ से कट कट की आवाज़ आई। मैंने चौंक कर देखा। चूल्हे के पास एक बिल्ली बैठी हड्डियां चबा रही थी। सब लोग बेहोश पड़े थे। मैंने देख लिया, इनमें रामू और लक्खू भी थे। उनकी बंदूकें और राइफलें एक दरख्त के साथ लगी हुई थीं। अचानक मुझे ख्याल आया कि एक राइफल या बंदूक भी साथ लेनी चाहिए, रास्ते में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। अब मैं दबे दबे पाँव उठाता उस दरख्त की तरफ गया जहाँ बंदूकें और राइफलें रखी हुई थीं। गोलियों की बेल्टें भी दरख्त की शाखों के साथ टंगी हुई थीं। मैंने एक राइफल उठा लिया। मैगजीन की बेल्ट उसके साथ ही लटक रही थी। राइफल 303 की थी। उस ज़माने में इस राइफल का शिकारियों और डाकुओं के यहाँ बड़ा रिवाज था। मैंने जल्दी से राइफल उठाई, मैगजीन की बेल्ट कंधे पर डाली, और सीढ़ियाँ उतर कर नीचे उस जगह पर आ गया जहाँ घोड़े बंधे हुए थे। घोड़ों पर जनें पड़ी थीं, और वो खामोश खड़े थे। पहले ख्याल आया कि 2 घोड़े ले चलूँ, फिर सोचा कि 2 घोड़े शोर न मचाएं, एक घोड़ा ही काफ़ी होगा। मैं लड़की को पीछे बिठा लूँगा। हमें घोड़दौड़ की रेस में तो हिस्सा नहीं लेना, बस जंगल ही पार करना है। खतरा था कि घोड़े को अजनबी आदमी का हाथ का लिम्स महसूस हुआ तो वो कहीं बिदक न जाए। इसके लिए मैं बड़े आराम से एक घोड़े के पास गया और बड़ी मोहब्बत से उसकी गर्दन पर हाथ फेरने लगा। घोड़े ने ज़रा सा गर्दन को झाड़ा, खर खर किया और फिर खामोश हो गया। वहाँ अंधेरा था, कोई लालटेन वगैरह नहीं जल रही थी।
मगर मुझे झाड़ियों के पीछे टीले के नीचे जाती पगडंडी की धुंधली बल खाती लकीर नजर आ रही थी। मैंने आहिस्ता से घोड़े की बाग दरख्त की शाख से खोली और बड़े आराम से घोड़े को लेकर झाड़ियों में से गुजरने लगा। मैं उसे इस ख्याल से पगडंडी पर न ले आया कि उसके टापू की आवाज़ पैदा हो गया और मुमकिन है आस पास कोई डाकू सो रहा हो और वो बेदार हो जाए। ये मेरी इंतहाई एहतियात थी। कुछ दूर घोड़े को झाड़ियों और घास में चलाने के बाद मैं आगे जाकर उसे ऊपर चढ़ाकर पगडंडी पर ले आया। यहाँ टीले के पीछे जो सुरंग थी उसकी एक पतली सी पगडंडी ऊपर से नीचे आ रही थी। मैंने घोड़े को उसी जगह एक झाड़ी में बांधा, अपनी राइफल उतार कर घोड़े पर डाली और चढ़ाई चढ़कर टीले की सुरंग के दिहाने की दाएं जानिब आकर रुक गया। जो डाकू रात को सुरंग के बाहर पहरा देता था वो अंधेरे में मुझे एक पत्थर से टेक लगाकर बैठा धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा था। मालूम नहीं वो सो रहा था कि जाग रहा था, मगर वहाँ मौजूद था और मुझे उसे वहाँ से इस तरह हटाना था कि वो शोर भी न मचा सके और मेरे हाथों हलाक भी न हो। एक बाशऊर तरबियत याफ्ता कमांडो कभी किसी इंसान को यूं हलाक नहीं करता, वो सिर्फ दुश्मन पर कारी ज़रब लगाता है। मैं दबे पांव शबनम में भीगी हुई घास में चलता, अंधेरे में सुरंग की एक तरफ होकर रुक गया। मैंने एक पत्थर करीबी फेंका, पत्थर की आवाज़ पर डाकू उठ खड़ा हुआ। वो जाग रहा था, जिस तरफ से आवाज़ आई थी वो उस तरफ चला, वो मेरी तरफ ही आ रहा था। मैं अपने हिसाब से एक तरफ खड़ा हो गया। अब वो मेरे बिल्कुल करीब से होकर झुक कर इधर उधर देखता जरा आगे हुआ तो मैंने अपना बायां बाजू सामने की जानिब से उसकी ठोड़ी के ऊपर उसकी गर्दन में डाल दिया। अगर मैं उसे ज़ोर से झटका देता तो उसकी गर्दन फौरन टूट जाती, मगर मैं उसे हलाक नहीं करना चाहता था। उसे पकड़ना और कानून के मुताबिक सज़ा देना इस इलाके की पुलिस का काम था। वो मेरा दुश्मन नहीं था, वो मेरे मुकाबले पर नहीं उतरा था, वो मेरे रास्ते में हायल हुआ था और मैं उसे हलाक किए बगैर अपने रास्ते से हटा सकता था। चुनाचे मैंने उसकी गर्दन को अपने बाजू में दबोच कर सिर्फ उतनी देर के लिए उसके फेफड़ों में जाने वाली ऑक्सीजन बंद कर दिया जितनी देर में वो सिर्फ बेहोश हो सकता था। जब मुझे यकीन हो गया कि वो बेहोश हो गया है तो मैंने पहला काम यह किया कि उसकी बंदूक दूर झाड़ियों में फेंक दिया। फिर उसके सर पर बंधा हुआ साफा उतार कर उसके मुंह में ठोंस दिया कि अगर इसे होश भी आ जाए तो वो फौरी तौर पर शोर न मचा सके। इस काम से फारिग होते ही मैं दौड़कर सुरंग में दाखिल हो गया। शकुंतला जाग रही थी। मैंने उसे कहा मेरे साथ हो। वो मेरे पीछे पीछे चल पड़ी। हम टीले के नशेब से उतरकर घोड़े के पास है। मैंने उसे सहारा देकर घोड़े पर बिठाया, राइफल कांधे पर डाली, खुद उसके आगे घोड़े पर बैठ गया और घोड़े को चलाता हुआ जुनूब की जानिब उतराई पर डाल दिया। शकुंतला मेरे साथ लग कर बैठी हुई थी। उसके बैठने का अंदाज बता रहा था कि वो घोड़े पर बैठने की आदी है। टीले की उतराई नीचे दूर तक चली गई थी। फिर हमवार मैदानी जंगल शुरू हो गया। हर तरफ अंधेरा था। मैंने शकुंतला से पूछा, हम ठीक सिमत पर जा रहे हैं ना? उसने कहा, मेरा ख्याल है ठीक जा रहे हैं। रास्ते में एक बार मैंने उसे अंग्रेज़ी में बात की तो उसने मुझसे पूछा, तुम पढ़े लिखे आदमी हो, इन डाकुओं में कैसे आ गया? मैंने अंग्रेज़ी में ही जवाब दिया, यह तुम्हें फिर कभी बता दूंगा। घोड़ा अंधेरे में दरख्तों और झाड़ियों और ऊंची ऊंची घास में से इस तरह गुजर रहा था जैसे वो इस किस्म के दुश्वार गुजार रास्तों का आदी हो। वो किसी जगह रुका नहीं। मैं उसे दौड़ा नहीं सकता था, उसे दौड़ाने के लिए वहाँ कोई जगह नहीं थी, लेकिन घोड़े को मैं जितनी तेज़ तेज़ चला सकता था चला रहा था। अपने कियास के मुताबिक मैं अपनी सिमत को मगरब की तरफ बरकरार रखे हुए था। दरख्त एक दूसरे के साथ साथ उगे हुए थे। कहीं कहीं पत्थर ज़मीन से बाहर निकल आए थे जिन पर चलने से घोड़े के टापू की आवाज़ पैदा हो रही थी। मगर अब हम डाकुओं की कमी गाह से दूर निकल आए थे। घने दरख्तों की वजह से रात की तारीकी ज़्यादा गहरी थी। घोड़े को चलाते हम डाकुओं की सुरंग से काफ़ी दूर निकल आए थे। घना जंगल तकरीबन ख़त्म हो गया था। आसमान पर झिलमिलाते सितारे नजर आने लगे थे। उनकी फीकी फीकी रोशनी में मंजर भी थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा था। ये एक खुला मैदान था। मैंने शकुंतला से उस मैदान के बारे में पूछा तो वो बोली, मैं यकीन से नहीं कह सकती कि मैंने इस जगह को पहले भी देखा है। दरिया आएगा तो मैं तुम्हें अपने कस्बे का रास्ता बता सकूंगी। मैं घोड़े को दौड़ाने लगा। मैदान ख़त्म हुआ तो एक और जंगल शुरू हो गया, मगर इस जंगल में दरख्त इतने गुंजान और साथ साथ उगे हुए नहीं थे।
अंधेरे में उनके ऊंचे ऊंचे तने सियाह सतूनों की तरह दिखाई दे रहे थे। यहाँ सियाह काली चट्टानें भी थीं। एक पहाड़ी नाला आ गया। हम उसमें घोड़ा गुजार कर ले गए। कोई आधा घंटा हम उस जंगल में घोड़ा चलाते रहे। सामने से हवा का झोंका आया तो उसमें नमी महसूस हुई। मैंने शिकंतला से कहा, शायद आगे दरिया आ रहा है। उसने कोई जवाब न दिया। दरख्तों से बह रहे तो सामने दरिया का पहाड़ दिखाई देने लगा। काफ़ी बड़ा दरिया था। रात के अंधेरे और सितारों की फीकी रोशनी में खामोशी से बहते हुए दरिया में एक अजीब सी दहशत और जलाल होता है। शिकंतला बोले, यही दरिया है, हम ठीक रास्ते पर जा रहे हैं। मैंने कहा, अगर थक गई हो तो हम घोड़े से उतर आते हैं। शिकंतला बोली, नहीं, मैं घुड़सवारी की आदी हूँ। जब पिताजी जिंदा थे तो मैं उनके साथ रोज़ सुबह सुबह घुड़सवारी के लिए जाया करती थी। अब तो हमारे पास सिर्फ बग्घी के 2 घोड़े ही रह गए हैं। हम दरिया के साथ साथ शुमाल की तरफ जा रहे थे। मैंने दूर नज़र जमा कर देखा। मुझे दरिया के ऊपर एक सियाह लकीर सी नजर आई। मैंने शिकंतला से कहा, मेरा ख्याल है वो सामने रेल का पुल है। शिकंतला ने मेरे पीछे से गर्दन निकाल कर सामने की जानब देखा और कहा, हाँ, ये रेलवे बुर्ज ही है, हम ठीक जा रहे हैं। उस पुल की दूसरी तरफ रजवाड़े का जंगल शुरू होता है। मैं घोड़े को दुल्की चलाने लगा। रेलवे पुल अंधेरे में वाज़ेह होता जा रहा था। हम दरिया के साथ साथ जा रहे थे। रेलवे पुल के पास आकर हम घोड़े से उतरे। उस पुल पर एक तरफ रेलवे लाइन बिछी हुई थी, उसके साथ ही पैदल चलने का रास्ता था। दरमियान में काफ़ी ऊंचा लोहे का जंगल लगा हुआ था। हम घोड़े को लेकर पैदल चलने वाले रास्ते पर चलने लगे। हमारी बाएं जानब नीचे दरिया नजर आ रहा था। पुल के सतूनों के पास से गुजरते तो दरिया की मौजों का सतूनों से टकराने का शोर सुनाई देता। रात की खामोशी और तरीके में दरिया की मौजों का शोर मेरे दिल में खुदाए जुल जलाल की अजमत और हैबत का एहसास पैदा कर रहा था। हम पुल पार करके दूसरी तरफ उतर गया। शिकंतला यहाँ रुक गया। बहुत सामने और दाएं जानब देखने लगी। उसने एक तरफ इशारा करके कहा, हम इस तरफ जाएंगे। राइफल मेरे कंधे से लटक रही थी। उसे चलाने का मौका नहीं मिला था और ये अच्छी बात हुई थी। हमें रास्ते में कोई जंगली दरिंदा भी नहीं मिला था। कुछ दूर तक हम घास और झाड़ियों के मैदान में चलते गए। इसके बाद फिर जंगल शुरू हो गया। शिकंतला ने कहा, यह हमारे रजवाड़े का जंगल है। हम दोबारा घोड़े पर बैठ गए। ये जंगल ऐसा था कि इसमें इंसानी आबादी के आसार भी मिल रहे थे। एक तालाब के करीब से गुजरे। एक जगह कुछ झोंपड़ियां दिखाई दी। एक पुराने मंदिर के चबूतरे के करीब से गुजरे। एक जगह कटे हुए दरख्तों के शतीर पड़े थे। यहाँ दिन के वक्त दरख्तों की कटाई और लकड़ियों की चिराई का काम होता हो गया। शिकंतला बड़ी खुश खुश दिखाई दे रही थी। कहने लगी, यहाँ से हमारे कस्बे की सरहद ज़्यादा दूर नहीं है। एक बरसाती नदी आएगी, फिर एक मंदिर का तालाब आएगा, इसके बाद हमारी हवेली आ जाएगी। उसने जिस तरह कहा था वैसे ही हुआ। एक बरसाती नदी आई, इसके बाद एक तालाब आया जिसकी एक जानिब मंदिर का बड़ा सा चबूतरा बना हुआ था। शिकंतला ने कहा, वो सामने आम के दरख्तों के पीछे हमारी हवेली है। हम घोड़े से उतरे। हम घोड़े को लेकर खुद पैदल चलते जब आम के बाग में से गुजर गया तो मुझे अंधेरे में एक इमारत का खाका नजर आया। शिकंतला वफूद मुसरत से बोली, ये हमारी हवेली है। माता जी ज़रूर जाग रही होंगी, भैया भी जाग रहे होंगे। मुझे अचानक अपने सामने देखकर उन्हें किस कदर खुशी होगी। हम हवेली की 4 दीवारी के करीब पहुंच गए थे। यहाँ कोई दरवाज़ा नहीं था। हम घोड़े को लेकर इहाते में दाखिल हुए ही थे कि सामने से एक कुत्ता भौंकता हुआ हमारी तरफ आया। मैं रुक गया। शिकंतला दौड़कर कुत्ते के पास गई। टॉमी टॉमी, मैं हूँ, तुम्हारी शिकन। कुत्ता शिकंतला के इर्द गिर्द चक्कर लगाने और उसकी टांगों से लिपटने लगा। कुत्ते की आवाज़ सुनकर एक चौकीदार ऊंची आवाज़ में बोला, कौन है उधर, कौन है? शिकंतला ने ऊंची आवाज़ में कहा, मैं हूँ बंसी बाबा, मैं हूँ शिकंतला। एक बूढ़ा चौकीदार डंडा हाथ में लिए दौड़ता हुआ हवेली के बरामदे में से निकलकर हमारी तरफ बढ़ा। मेरी बेटिया, हमारी बेटिया है, राम राम। बेटिया, भगवान की कृपा हो गई, मैं रानी माँ को जगाता हूँ। हाय भगवान, है भगवान। चौकीदार ने मेरी तरफ कोई तवज्जो ना दिया और रानी माँ, बच्ची आ गई है पुकारता हवेली के बरामदे वाले दरवाजे की तरफ भागा। अंदर एकदम रोशनी हो गई। जो कमरे के बरामदों में खुलने वाले रोशनदानों और खिड़की पर गिरे हुए पर्दों के पीछे से नजर आने लगी। दरवाज़ा एकदम खुल गया।
दो औरतें बह रही। उन्होंने झुककर शकुंतला के पांव छुए। वह पूरे मुसर्रत से उनसे बात नहीं हो रही थी। माता जी सो रही हैं क्या? ये दोनों नौकरानियां लगती थीं। एक ने कहा, रानी माँ बीमार हैं। शकुंतला दौड़कर कमरे में दाखिल हो गई। मैं घोड़े के लिए बरामदे के बाहर ही खड़ा रहा। चौकीदार बंसी ने मुझसे घोड़े की बैग लेते हुए कहा, महाराज घोड़ा मुझे दे दें, मैं इसे तबीले में ले जाता हूँ। मैंने घोड़ा उसे दे दिया। वो घोड़े को लेकर तेज से चलाता इहाते के कोने की तरफ चला गया। दोनों नौकरानियां भी शकुंतला के पीछे पीछे हवेली के कमरे में चली गई थीं। मैं बरामदे में सतून के पास बैठ गया। इतने में शकुंतला बह रही कहने लगी, अंदर आ जाओ प्लीज, माता जी की तबीयत ठीक नहीं है, वो खुद बह रह कर तुम्हारा स्वागत नहीं कर सकती हैं, अंदर आ जाओ, वो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हैं।